Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the very first session of Science Class 5th, chapter number 1, that is about growing plants. The students, in this session, we are going to learn the different modes or the ways by which the plants can be grown or they can be reproduced. So, let's start the chapter and learn the methods. So, as we all know, that plants are living beings, and the living being have the feature to reproduce their young ones. So, they reproduce more of their own kind in different ways. Most of the plants reproduce through seeds, but some plants reproduce by their vegetative part, such as root, leaves, or stems. So, let us learn about the various ways in which plants reproduce. So, what they say, the plants living beings है, ये अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये थोड़े ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है, वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि रूट, लीव्स और स्टेम्स का फॉर प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस। Like this, we are going to learn the various ways in which plants reproduce. First of all, reproduction from seed. So most plant bear flowers. As we all know, ज़्यादातर plants में क्या होते हैं? Flowers होते हैं। And once flowers bloom, यानी कि एक बार जब flowers bloom करते हैं, ये क्या होता है? Brown color में turn हो जाते हैं। The petals fall off, petals इनकी गिर जाते हैं, and then they change into fruits. Now these fruits, अब इन fruits के अंदर students क्या होती है? Seeds present होती हैं, and इन्हीं seeds के अंदर एक new baby plant होता है। When the seeds are sown into the soil, अब जब इन seeds को soil में sow किया जाता है, a new young plant starts growing out of it. A seed consists of a baby plant. As I told you, एक seed के अंदर एक baby plant होता है, which is called embryo. And the embryo has two ends. Embryo के two ends होते हैं. You can see this is the structure of a seed. ये embryo है, this is the food store, and this the outer covering is known as seed coat. See, one end grows into the root. Okay, उनमें से एक end जो है roots में grow करता है, and जो other end है वो shoot में grow करता है. The outer covering of the seed की जो outer covering है, I told you that is known as seed coat. ठीक है, and it protects the internal parts of the seed. And seed coat का काम है seed के जो internal parts है उनको protect करना. Then एक seed के अंदर students एक seed leaf भी होती है which is called cotyledon. And cotyledon का काम है baby plant के लिए which is inside the seed, उसके लिए food store करना. Next, some seeds, अब कुछ ऐसी seeds like maize, wheat and rice जिनमें केवल एक cotyledon present है and therefore they are known as monocotyledons or simply monocots. But there are some other seeds like gram, pea and beans इनमें two cotyledons होती हैं and therefore they are called dicotyledons or simply we can say dicots also. Alright. Now next we have the topic that is seed germination यानी कि कैसे एक seed germinate करती है. So the small plant which grows from a seed is known as a seedling. सबसे पहले एक seed के थ्रू जो छोटा सा plant grow करता है उसे seedling कहा जाता है. Seedling को अपना food कहाँ से मिलता है? From the cotyledons. जब तक seedling में new leaves नहीं आती है, fresh leaves आने शुरू नहीं होती, तब तक वो seedling अपना food cotyledons के थ्रू derive करते हैं. The process of growing of a seed into a seedling is known as germination. And वही process जहाँ पे एक seed seedling में grow करता है उसे हम germination process कहते हैं. एक seed को usually एक long time तक क्या करना पड़ता है? Wait करना पड़ता है before it finds the right conditions to grow or to germinate. Alright? एक seed केवल तभी germinate होती है जब उन्हें right amount of water, air and sunlight यानी कि warmth मिलती है. देन इसके साथ साथ अ सीड रिक्वायर्स वाटर टू सॉफ्टन द सीड को. सबसे पहले सीड को वाटर की रिक्वायरमेंट है सो दैट जो आउटर कवरिंग है, हार्ड आउटर कवरिंग दैट इज सीड कोट, उसे सॉफ्ट किया जा सके. उसके साथ साथ वाटर क्या करता है? जो सीड लीव्स के अंदर फूड स्टोर्ड है उसे सॉल्यूबल बनाता है सो दैट उसे बेबी प्लांट यूज कर सके. आफ्टर दैट एक सीड को एयर रिक्वायर है
क्योंकि उसे भी ब्रीथ करना है एंड ब्रीदिंग के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए विच इज डिसॉल्व इन एयर। एंड देन अ सीड नीड्स वार्मथ आल्सो, ठीक है, एक्टिव रहने के लिए सीड को वार्मथ की भी रिक्वायर्ड। Like this, these are some essential conditions which are required for the seed to get germinate. Next, we have dispersal of seed. Plants produce a large number of seeds. As I told you, plants जो है large number of seeds को produce करते हैं. However, लेकिन अगर सारी seed students near the parent plant fall करती हैं, तो वहाँ पे enough water and nutrients जो है उनके लिए नहीं मिलता to grow well. सभी seeds को एक adequate amount का water अंदर नहीं मिल पाता, alright, वहाँ पे ज़्यादा competition हो जाता है चीज़ों के लिए। इसीलिए सीड्स को मदर प्लांट से सेपरेट करना जरूरी है टू ग्रो वेल। एज प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड, जैसे कि प्लांट्स जो है ग्राउंड के साथ फिक्स होते हैं एंड दे कैन नॉट मूव, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकते ऑन देयर ओन। इसीलिए नेचर ने कुछ अदर वेज अरेंज किए हैं जिससे सीड्स को लार्ज डिस्टेंस तक स्कैटर किया जा सके। राइट, देयर आर सम एजेंट्स इन द नेचर, हमारे नेचर में कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो इन सीड्स को स्कैटर करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्शन। बेसिकली इन एजेंट्स का काम है सीड्स को पेरेंट प्लांट से दूर ले जाना सो दैट वहां पे इन्हें एडिक्वेट कंडीशंस मिल सके फॉर द जर्मिनेशन प्रोसेस। The process of scattering of seeds or fruits away from the mother plant is called seed dispersion. एंड यही प्रोसेस जहाँ पे सीड्स जो है मदर प्लांट से दूर जाकर स्कैटर हो जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सीड डिस्पर्शन। नाउ एजेंट्स ऑफ डिस्पर्शन, मैंने कहा क्या क्या एजेंट्स है जिससे डिस्पर्शन होता है। नंबर वन इज विंड। तो सीड्स जो कि यूजुअली स्मॉल, फ्लैट, ड्राई एंड लाइट वेट होती है, इन सीड्स के पास विंग्स होते हैं सो दैट ये एयर में इजिली फ्लोट कर सके and drop down to grow also. For example, seeds of maple, dandelion, cotton, etc. They can be easily carried away by the wind. Next is dispersal by water also means उन plants की seeds जो कि near the water grow करते हैं, उनकी seeds को water के through disperse किया जा सकता है। Example lotus and coconut. Next is animals. So birds and animals eat fruits and throw away their seeds. है ना, birds and animals usually fruits खाते हैं and then इनकी seeds को throw कर देते हैं। अब कुछ seeds पे students hooks और spines भी होते हैं जो इन animals की hairy skin में stuck हो जाते हैं and then they are carried away like this. For example, seeds of castor, burdock and mimosa plant, इन सभी पे hooks और spines और glue होता है। ये एनिमल्स के फर्स के साथ या बर्ड्स की विंग्स के साथ या ह्यूमन बीइंग के क्लोज के साथ क्लिंग हो जाते हैं एंड देन दे रीच ऑफ द फार प्लेसेस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। सी सम फ्रूट्स लाइक पीज एंड लेडी फिंगर बर्स्ट और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि पीज एंड लेडी फिंगर, जब ये ड्राई हो जाती हैं तो ये बर्स्ट हो जाती हैं एंड बर्स्ट होने के बाद इनके अंदर जितनी भी सीड्स हैं वो एक्सप्लोड हो जाती हैं। इस तरीके से व्हेन द पॉड बर्स्ट ओपन, जब ये पॉड जो है ये बर्स्ट होता है, एक्सप्लोजन के थ्रू ये सीड्स जो है बाहर आती हैं एंड पेरेंट प्लांट से दूर जाके स्कैटर हो जाती है। So like this explosion also helps in the scattering or dispersal of seed. The next topic which we have is reproduction through other parts. ये था आपका एक मेथड जहाँ पे हम देखा हमने कि कैसे प्लांट सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। But now there are some other parts also through which the plants can be reproduced. Okay, root, stem, leaf, ये सभी plants के vegetative parts होते हैं। In many plants, बहुत सारे plants में stem, leaf, roots and spores जो हैं ये new plants को rise देते हैं and ये सबसे simplest method है reproduction का in the plants. So first of all we have through roots, यानी कि roots के through कैसे reproduction होता है। तो प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डहलिया एक्सेट्रा, स्वीट पोटैटो, डहलिया जैसे प्लांट्स जो है ये न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम देयर रूट्स ओनली। ऑलराइट, तो बेसिकली इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये स्वलन होती है, फूली हुई होती है, ट्यूबरस होती है बिकॉज इनके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। एंड व्हेन दीज रूट्स, जब इन रूट्स को सॉइल में प्लांट किया जाता है द न्यू प्लांट्स ग्रोज आउट ऑफ दैट। ऑलराइट,
सेकेंडली थ्रू स्टेम्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक रोज, मिंट, हिबिस्कस, शुगर केन एक्सेट्रा, जिन्हें हम इनकी स्टेम्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। इन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं स्टूडेंट्स, दे बियर बर्ड्स, इनमें बर्ड्स होते हैं। एंड व्हेन दीज स्टेम्स आर प्लांटेड इनटू द सॉइल, जब इन स्टेम्स को सॉइल में प्लांट किया जाता है, वहां से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन शुगर केन में पहले हम स्टेम्स को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, एंड देन इन पीसेस को ही कहा जाता है स्टेम कटिंग्स। लाइक दिस यू कैन सी, ये स्टेम कटिंग है शुगर केन में, एंड स्टेम कटिंग को हमने ग्राउंड में सो कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ से एक न्यू प्लांट जो है शुगर केन का, वो ग्रो कर रहा है। सिमिलरली पोटैटो, जिंजर, ये भी एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। इनमें आईज होती हैं। ओके, हर एक आई के थ्रू क्या, एक आई जो है ग्रो करके आगे बड बनती है, एंड जब इन बर्ड्स को सॉइल में प्लांट किया जाता है, दे ग्रो टू बिकम न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव थ्रू लीव्स आल्सो। सी, यू कैन सी द ब्रायोफाइलम प्लांट। ब्रायोफाइलम प्लांट जो है, ये न्यू प्लांट्स में ग्रो कर सकता है अपनी लीव्स के थ्रू। एक्चुअल में ब्रायोफाइलम प्लांट में काफी थिक एंड फ्लैशी लीव्स होती है। यंग बर्ड्स अराइज अलोंग द एजेस ऑफ ब्रायोफाइलम लीव्स। यू कैन सी, ये ब्रायोफाइलम लीफ है, एंड इन लीव्स के एजेस पे कुछ यंग बर्ड्स जो है वो ग्रो करते हैं। एंड जब ये बर्ड्स क्या करते हैं, दे ड्रॉप डाउन ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे नीचे गिरते हैं, ये वहीं से ग्रो करते हैं इनटू दी न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स के थ्रू भी कुछ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। द प्लांट्स which do not have reproductive parts, for example mushroom, fern and mosses, do not produce flower. They produce tiny spores that grow on the underside of their leaves. Very important कि अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, फर्न एंड मोजेस, इनके पास क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते, ये ना ही फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स की जगह ये टिनी पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये टिनी पोर्स जो है इनकी लीव्स के अंडर साइड ग्रो करते हैं। जब ये स्पोर्स, व्हेन द स्पोर्स फॉल टू द ग्राउंड, जब ये स्पोर्स ग्राउंड पे फॉल करेंगे, ईच ऑफ दीज स्पोर, हर एक स्पोर के थ्रू एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। ऑलराइट, the next topic which we have is that is crops. The plants that are grown in large quantities to provide food and other useful substances are called crops. और जैसे कि कुछ ऐसे plants अब जो large quantity यानी कि बहुत enormous amount में इन्हें grow किया जाता है to provide food and the other useful products, such plants are called crops. And this practice of growing large quantities of plants for food and other purposes is called agriculture. Right? Now, there are different kinds of crops. For example, food crops. First of all, we have food crops from which we get food. Like we have rice, maize, and wheat. Second, we have fiber crops such as cotton, jute, and hemp. Then we have some oil producing crops also like peanut, mustard, and linseed. तो टू ग्रो प्रॉपरली, अब इन सभी क्रॉप्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए सनलाइट, वाटर, एयर एंड फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। सम क्रॉप्स हाउएवर मे रिक्वायर वन ऑफ दीज इन अ ग्रेटर और लेसर अमाउंट। अब कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जिन्हें इनमें से किसी भी एक चीज की रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू अदर प्लांट ज्यादा या कम चाहिए होता है। ऑलराइट, एंड इसीलिए इन सभी प्लांट्स को डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट एरियाज में ग्रो किया जाता है। The crops which are grown in the winter season. अब वो crops जिन्हें आप winter season में grow करते हैं, they are called rabi crops. And rabi crops को हम March month में harvest करते हैं. For example, wheat, gram, cabbage and cauliflower, etc. They are the examples of rabi crops. Then we have some another type of crops also which are grown in the summer season. The crops which are grown in the summer season, they are called kharif crops. And kharif crops को harvest किया जाता है at the end of the monsoon season. Example, rice, maize, brinjal and pumpkin, etc. These are the examples of some kharif crops. Next, we have what stages of agriculture. So, the farmer works very hard to get a good yield for a good healthy crop. So, what they're saying कि farmers जो है बहुत hardly work करते हैं एक अच्छा yield या एक अच्छा production करने के लिए of the healthy crops. And एक अच्छे crop production के लिए various stages हैं which are given below.
नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लो द फील्ड की प्लोइंग करी जाती है। सेकेंडली इसमें फिर मैन्योर ऐड किया जाता है। देन थर्ड स्टेप इज सोइंग द सीड्स, इसके बाद सीड्स सो करते हैं। देन इरिगेटिंग द फील्ड्स को इरिगेट किया जाता है। देन स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, वेल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करना होता है। एंड देन जब एक मेच्योर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं, then at the end we have to do harvesting of those crops. Right? Next is protection of crops and storage of seeds. कैसे crops को protect किया जाता है and then how can we store the seed? We need to protect our crops against. अपने crops को हमें कुछ basic pest या animals के against जो है protect करना पड़ता है. Like grazing animals. Grazing animals है like cow and goat, इनसे protect करना है. सेकेंडली लोकस, ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर जैसे पेस्ट के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड थर्ड डिफरेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करना होता है। बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग। एंड देन जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उन्हें भी हमें अपने फील्ड से दूर रखना होता है। ओके, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर फील्ड्स अगेंस्ट दीज बिगर एनिमल ऑल्सो, एंड दिस कैन बी अचीव बाय प्रॉपर फेंसिंग। देन आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, राइट? इन्हें रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्विरल एंड इंसेक्ट्स से भी सेफ रखना पड़ता है। तो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट एंड सील्ड कंटेनर, इसीलिए इन्हें एयर टाइट एंड सील्ड कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है फॉर द फ्यूचर यूज, राइट? That's all for the chapter. It's completed over here, and I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session and then keep going well. And thanks to everyone.